The two auto drivers arrested in the Dhanbad judge hit and run case have been sent to 5 days custody, even as lawyers across Jharkhand abstained from work Friday to protest against alleged mowing down of the judge by a heavy auto rickshaw and murder of an advocate earlier. Lawyers numbering over 30,000 expressing concern over law and order situation in the state demanded implementation of Advocates Protection Act in the state for the safeguard of advocates and their functions and discharge of the professional duties. The Dhanbad police have taken both the arrested auto drivers Lakan Verma and his accomplices Rahul Verma on 5 days remand, officials said. Both were produced in Dhanbad Chief Judicial Magistrate Residential Court late Thursday night, which sent them to custody. The special investigation team headed by Additional Director General of Police Sanjay Anand Latkar has got into action in the dastardly incident which shocked the nation. The Supreme Court Friday took SUO motor cognizance of the sad demise of 49-year-old Judge Uttam Anand in gruesome incident of being allegedly mowed down by a vehicle while on morning jog on July 28 at Dhanbad and sought a status report within a week from Jharkhand's Chief Secretary and the DJP on the probe into the incident. Lawyers across the state kept away from judicial work on the call of all 37 bar associations, including 24 district bar associations, 12 sub-divisional bar association and one advocates association at Jharkhand High Court to protest against the incident. Hemant Sikawar, advocate Jharkhand High Court and member Jharkhand State Bar Council told PTI. झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने एक इमरजेंट जनरल बॉडी मीटिंग कॉल की थी 28/7/2021 को डिस्कस करने के लिए हमारे एडवोकेट मनोज झा के ब्रूटल मर्डर के इश्यूज पे कि हम लोगों को झारखंड स्टेट बार काउंसिल को क्या डिसीजन लेना है। यूनानिमसली एक डिसीजन आया है। हम लोगों के बार काउंसिल के सारे मेंबर्स जो मीटिंग में उपस्थित थे, सारे लोगों ने एक मत होकर ये डिसीजन लिया है कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा अथॉरिटीज को और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो उन एक्यूज पर्सन्स पे जिन्होंने ये क्राइम को किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि अपने यूनिटी को शो करने के लिए लॉयर एट लार्ज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने बहुत कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में एक डिसीजन लिया है कि हम लोग अपने कोर्ट वर्क से आज एब्स्ट्रेंग करेंगे। झारखंड स्टेट के ऑल टुगेदर 35,000 एडवोकेट्स आज अपने कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे न्यायिक कार्यों से। Sikawat said a delegation of the council will soon meet the Chief Minister Hemant Soren and Governor Ramesh Bas in this connection. He said about 35,000 lawyers in the state kept themselves away from the judicial work to express solidarity as well as to mount pressure on government to implement Advocate Protection Act, which was pending for long immediately. Apart from raising the death of the judge, the striking lawyers also demanded an inquiry into the death of an advocate Manoj Kumar Jha, which was murdered by anti-social elements in Tamar, Ranchi recently. Following the killing of Manoj Kumar Jha, the council held an emergency meeting and had decided that lawyers will abstain from work across the state in protest against the two incidents. Sikawat said that all the 37 bar associations of the state also submitted a memorandum in support of their demand, which also included adequate compensation to the victim's family, fast trial to ensure stringent action to the culprits involved. और साथ ही साथ एक डिसीजन और भी हुआ है झारखंड स्टेट बार काउंसिल का कि हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर चीफ मिनिस्टर से और गवर्नर से मिलेगा और हम लोग उनको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने एक बिल ड्राफ्ट कर गवर्नमेंट को दी थी कि लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों का आए और जिस पे अभी हम लोगों को चीफ मिनिस्टर से और गवर्नर से रिक्वेस्ट करना है कि जिस तरीके से अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट एक ऑर्डिनेंस लाकर गवर्नमेंट इस हमारे बिल को एटलीस्ट अप्रूव करे और लॉयर के अगेंस्ट में हो रहे एट्रोसिटीज से हम लोगों को सेव करे, क्योंकि लॉयर्स के ऊपर में जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं और जिस तरीके का फॉल्स इम्प्लीकेशंस लॉयर्स पे हो रहा है, ये समय का मांग है कि एक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आए और उसके लिए हम लोग परस्यू कर रहे हैं काफी दिनों से और आज का ये डिसीजन बहुत अहम होगा इस मुद्दे को लेकर कि हम लोग इस तरीके का इशू को उठा के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि ऑर्डिनेंस लेके आए। हम लोगों ने डिस्कस किया एडीजे 8 धनबाद उत्तम आनंद के डेथ से रिलेटेड भी और हम लोग अकॉर्डिंगली ऑनरेबल कोर्ट के उस डिसीजन पे जहां हम लोगों ने
कोर्ट को इन्फॉर्म भी किया कि वो हमारे भी मेंबर थे, और कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट व्यू अडॉप्ट करते हुए डायरेक्शंस दिए हैं कि अक्यूज जो हैं उनको अप्रीहेंड करे, और जो कंक्लूजन है जो उसके पीछे है उस चीज़ को सामने सारे लोगों के लेकर। Meanwhile, Bokaro Bar Association General Secretary M.K. Srivastav said the law and the order situation of a state was the major criteria to assess the development of the state. When the law of the state are not safe, how we think about the safety of common man? He questioned while demanding for immediate implementation of Advocate Protection Act. ये जो घटना घटी, मनोज झा अधिवक्ता जो रांची सिविल कोर्ट के साथ, और उत्तम आनंद जी जो एडीजे धनबाद के साथ जो निर्मम हत्या की गई नृशंस, उसका हम सभी घोर निंदा करते हैं और शोक संतृप्त परिवार के साथ हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। आज पूरे प्रदेश में सभी 37 बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण आज न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखे हैं, और डीसी साहब को हर एसोसिएशन के द्वारा एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री को निर्देशित करते हुए डीसी साहब को अग्रसारित करना है उनको। उसमें यह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अधिवक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, उसको यथाशीघ्र अभी मानसून सत्र में ही राज्य सरकार उसको लाए, अध्यादेश लाए और ऑर्डिनेंस ला करके और इसको इम्प्लीमेंट 2018 में ही झारखंड राज्य सरकार के पास झारखंड स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को वहाँ भेज चुकी है और अभी तक लंबित है। अभी तक जो स्थिति है वो निरंकुश है और निष्क्रिय है। हम लोग सरकार को दिशा दिखाने के लिए और जागरूक करने के लिए आज हम लोग कृत संकल्पित हैं कि वो इस दिशा में अधिक से अधिक लॉ एंड ऑर्डर को जो है सही करे, और अधिवक्ता गण और न्यायिक पदाधिकारी जो लीगल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसकी पूर्ण सुरक्षा करे, उनके और उनके परिजनों को।